back to my channel. Today the topic in Java, I'm going to start about the constructor. I have mentioned few points about the constructor and also write the program related to the constructor in last video as well. But today again I'm going to start the constructor topic today again. So if you are having any doubt, you can ask. So before starting that, the theoretical session I have already covered in the last video, you can check. And here today I will try to write some examples so you can do the practice and you can try to get the concept like how we are executing the constructor and what is constructor is. Okay, so what constructor is, so basically constructor क्या होता है, this is the very important question in Java. So this is interview question as well, and if you are a student, so this question will ask you in your exam as well. And let's start. What is constructor? So basically the constructor is a special type of method that is used to initialize the object. Also, constructor is used to initialize the instance variable value. And you have to remember few things about the constructor. You no need to write any access modifier when you are declaring the constructor. Okay, and constructor name must be same as the class name. Second thing, constructor must have no explicit written type. It should not have any void, integer when you are declaring the constructor name. And a Java constructor cannot be abstract, static, and final and synchronized. These things you need to remember. As I told you, you no need to declare any access modifier while you are writing the constructor name. It control the object creation. Basically you can say we can have private, protected, public, or default constructor in Java. So these are the various types of constructor we will be covering about. And normally you can say we in Java we are having the two types of constructor that I have covered already. One is default constructor and second is parameterized constructor. We do have also copy constructor as well, but we will learn it later about this later. So basically constructor क्या होता है, just a special type of method that is used to initialize the object, you can say, and also the instance variable value. So Java में constructor वो किस तरीके से पास कराते हैं, किस तरह से लिखते हैं, वो देख लीजिए. तो basically the first rule to define the constructor, आपका जो क्लास का नेम है वो सेम नेम होना चाहिए. कंस्ट्रक्टर का नेम भी आप किसी दूसरे नेम से उसको नहीं लिख सकते हैं और ना ही कोई रिटर्न टाइप आप कंस्ट्रक्टर में दे सकते हैं. जैसे मेरी क्लास का नेम है test1. एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कंस्ट्रक्टर whenever you are creating the object of your class, it's invoked by default. ये by default कॉल होता है, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपने कंस्ट्रक्टर लिखा भी नहीं है अपने क्लास में, कंस्ट्रक्टर बनाया भी नहीं है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि आपकी लेकिन वो कब होता है, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. उसका काम होता है आपके इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना, अगर आपने नहीं की है, और अगर आपने की है तो वो उसको ओवरराइड कर देता है. ठीक है. सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, मेरी क्लास का नेम क्या है, test1 है. हम यहाँ पे test1 पे क्लिक किया और ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया. सो बेसिकली ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है. आप इससे पहले यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट कुछ भी नहीं लगाते हैं. यहाँ पे दूसरा, आप यहाँ पे इंटीजर, वॉइड, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई रिटर्न टाइप नहीं देंगे. सो इट विल नॉट बी हैविंग एनी एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप. यू विल जस्ट राइट test1. अब पब्लिक test1 हमने जो क्लास लिखा है उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं. बट फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट हियर दिस थिंग्स, कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू को हम कैसे कॉल कराते हैं बेसिकली. तो मैंने क्लास का नेम यहाँ पे test1 रखा है और test1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मेरा कंस्ट्रक्टर है. कमेंट में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर. सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का तरीका ये होता है, यू हैव टू बी रिमेंबर दिस थिंग, कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज योर क्लास नेम. जो भी क्लास का नेम आपने दिया है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए. दिस इज द मेन थिंग. सो अभी मैंने इस यहाँ पे आपको लिखा है system.syu.println. मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, एक यहाँ पे लिखा है ये कंस्ट्रक्टर, हेलो कंस्ट्रक्टर. सो अभी मुझे ये प्रिंट कराना है, तो हम विल प्रिंट. मैंने कुछ नहीं किया, स्टैटिक वर्ड में लिखा है यहाँ पे मेरा जो क्लास है, क्लास में का आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए. ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम obj इज इक्वल्स टू न्यू. तो ये जो दूसरे टाइप लिखते हैं ना, इसको भी आप कंस्ट्रक्टर ही बोलते हैं. obj एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये आपका वे ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या फिर रेफरेंस क्रिएट किया, आप इस तरह से बोल सकते हैं इसको. ठीक है ना. तो अभी मैंने क्या किया, इसको रन कराया. मैंने कॉल नहीं कराया जैसे मेथड को कॉल कराते हैं हम, तो मैंने ऐसे इसको कॉल नहीं कराया है.
कंट्रोल एस किया, सेव किया, राइट क्लिक कीजिए, रन एज पे क्लिक करेंगे, जावा एप्लीकेशन पे रन कराएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्रिंट होकर आ गया हेलो कंस्ट्रक्टर। इसे आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। वेन एवर यू आर नॉट डिफाइनिंग एनी पैरामीटराइज any parameter inside the constructor parenthesis here, so it will be default constructor। कि आपको कोई भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास नहीं कराया है तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, अगर आपको डेफिनेशन में लिखनी है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, नहीं है तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। यू शुड रिमेंबर वन थिंग, basically in Java constructor we can have private, protected, public or default constructor as well, and when we use the access modifier while declaring a constructor it control the object creation। okay, so you have to be remember this। तो यहाँ पे अगर आपको access modifier का यूज करना है तो then there can be public, protected, default and the private। ये अपनी अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं जो भी लेकिन हम उसको बाद में पढ़ने वाले हैं, but it can be। you should remember one more thing here, basically a constructor construct the value at the time of object creation। it is not necessary to write a constructor in your class as I had already told you, because whenever you will compile your code and you have created the object of the particular class it will invoke by default, that is called the default constructor। okay, so if you are not creating that's fine, if you are creating by default it will be create a constructor in your class। so the दो एग्जाम्पल हमें अभी देखने वाले हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, यहाँ पे टेस्ट वन एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और यहाँ पे एक मैंने हेलो कंस्ट्रक्टर प्रिंट एलन का यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैं जब भी मैं इस कोड को रन कराऊंगी तो मेरे स्क्रीन पे कंसोल विंडो पे हेलो कंस्ट्रक्टर ही प्रिंट होना चाहिए विदाउट कॉलिंग, ओनली व्हेन आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर आईडी एक वेरिएबल यूज़ किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग का नेम एक वेरिएबल यूज़ किया। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया है, कोई भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है, कोई भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इनको मुझे प्रिंट कराना है और मैंने इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। तो आप obj.id, ये मेरा नॉन स्टैटिक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया नॉन स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट से कॉल कराना पड़ेगा। तो ये मैंने object.id यहाँ पे लिख दिया है, system.out.println लिखा है, इसका obj.name मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आप चेक करेंगे कंट्रोल F9 सॉरी यहाँ पे रन एज पे जाएंगे, जावा एप्लीकेशन को रन कराएंगे तो इसका वैल्यू है 0 नल। तो कैसे हुआ है 0 नल, मैंने तो डिफाइन नहीं किया बाय डिफॉल्ट, बिकॉज वेन एवर यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास और आप इसको रन कराते हैं तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज आपको कंसिडर कर देता है। तो इंटीजर का बाय डिफॉल्ट क्या होता है 0, स्ट्रिंग में आपका नेम यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा नल। अभी मैंने क्या किया, ये जो आईडी है इसकी वैल्यू को मैंने 101 कर दिया है और नेम को मैंने यहाँ पे इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, तो अभी आप रन कराएंगे इसको, राइट क्लिक रन एज। अभी जो कंस्ट्रक्टर है बाय डिफॉल्ट उसने 0 नल किया लेकिन वो आपकी वैल्यू से वो रेड हो जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज द वे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर काम होता है आपकी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करना। व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप पैरामीटर भी असाइन नहीं करते हैं। तो ये आपका एक कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे दिया है आपको। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें आपको ये काम कैसे करते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपने सपोज यहाँ पे मैंने पेंट ओपन किया है, ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ डायग्राम यू कैन क्रिएट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने एक शेप क्रिएट किया, सपोज ये वाला, इस शेप में मैंने यहाँ पे क्लास का नेम दे दिया है। ये जो मेरी क्लास का नेम है यहाँ पे ब्रश में नहीं, पेंसिल से क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। ये मेरी जो क्लास है ये यहाँ पे हम क्लास का नेम लिख देते हैं। ये मेरी a.java क्लास है। ये कौन सी क्लास है, मेरी a.java क्लास है। ओके, ये क्लास मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरी a.java क्लास है। अभी हमें क्या करना है, इसके कोड को कंपाइल कराएंगे। यहाँ पे क्या करा रहे हैं, आप इस कोड को कंपाइल करा रहे हैं। ओके, सो ये मेरा क्या हो गया, कंपाइलर हो गया। इस तरीके से आप छोटा सा डायग्राम बनाना चाहते तो बना सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन हम बना देते हैं। यहाँ पे ये मेरा क्या है, कंपाइलर है। सपोज जब आप ये जावा फाइल को कंपाइल कराते हैं तो आपको पता है कि डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। कौन सी फाइल जनरेट होती है, आपकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, लेकिन वो किस फॉर्मेट में क्रिएट होती है वो देख लीजिए आप। अभी मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट विंडो है, इस टेक्स्ट विंडो को थोड़ा सा यहाँ पे कोड के फॉर्मेट में लिखते हैं।
तो ये जो क्लास है आपकी किस तरह से डिफाइन होगी, क्लास ए, एंटर करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर से कर्ली ब्रेसेस बंद कर देंगे, और इसके अंदर बस मतलब जिस वे यहीं पे कर देती हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी आप लिखेंगे डॉट डॉट, ये आपका क्लास ए हो गया। अब कंपाइलर ने ये बनाया और यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया, जब कंपाइलर इसको रन कराएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो वो कंपाइलर कैसे करता है वो देख लीजिए। मेरा ये जो क्लास फाइल है यहाँ पे, तो कंपाइलर जब इसको क्रिएट करेगा तो आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से होकर आएगा। तो मेरा यहाँ पे आगे क्लास, सॉरी ये मेरा क्लास ए है, एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्लास ये आपका इस तरीके से काम करेगा। ये आपका कर्ली ब्रेसेस है, ये कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लास का बंद है। तो दिस इज अ वे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका जब कंपाइल करने के बाद में आपका क्लास इस फॉर्मेट में आ जाता है, बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट तब भी होता ही है। सो बेसिकली क्या पर्पस होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या पर्पस होता है, बेसिकली इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू। जैसे कि इंटीजर आप है तो नल होगा, स्ट्रिंग है सॉरी इंटीजर है तो 0 होगा, स्ट्रिंग है तो नल होगा, और आपका डेसिमल में है तो 0.0 हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन डेटा टाइप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और मैंने एग्जांपल में बताया कि अगर आपने नहीं डिफाइन किया तो आपकी वैल्यू कैसे आएगी, और ये वाला मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। ये तो यहाँ पे आपका कवर होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी सेम ही चीज़ होता है, लेकिन पैरामीटराइज आपका डिफाइन हो जाता है। यहाँ पे हम क्लास का नेम दे देते हैं पैरम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है, मेन मेथड पे क्लिक कीजिए। अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अभी ये जो मैंने क्लास का नेम बनाया है इसी का हम यहाँ पे एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यूज किस लिए होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बेसिकली कंस्ट्रक्टर विच हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप लोग टाइप कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर विच हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर इट इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, नोटपैड में जाते हैं। नोटपैड में यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स लिखते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। which is constructed the value, like, or you can which is having that value, so which is having the argument। ये सारी चीज़ें वैल्यू आर्ग्यूमेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इन ए जावा यहाँ पे आप इस तरह से इन ए जावा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वन और मोर किसी भी तरीके से आप रखना चाहिए पैरम, those type of कंस्ट्रक्टर इज नोन एज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैसे, जैसे कि आपका ये क्लास है, क्लास का नेम ए है आपका, इसमें आपने ए लिखा है और यहाँ पे कोई पैरामीटर लिखा है इंटीजर आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है आपका। यहाँ पे कुछ भी आप डेटा देने वाले हैं, और ये यहाँ पे भी आप एक कोई वेरिएबल इंटीजर आईडी 1 स्ट्रिंग यहाँ पे नेम 1 ये लिख दिया। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये आपका जो कहलाता है वो पैरम कंस्ट्रक्टर कहलाता है, या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं आप इसको। ये इस तरीके से आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल ये है। अभी हम जैसे बात करते हैं कि मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें मैंने पैरामीटर डिफाइन करे हैं, तो वो हम कैसे बनाते हैं। अभी हम एग्जांपल की बात करते हैं, अपने यहाँ एग्जांपल पे आ जाते हैं। मैंने एक पैरम कंस्ट्रक्टर लिया है जिसका क्लास का जो नेम है वो पैरम कंस्ट्रक्टर है, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लैंग्वेजेस करके एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस पास करानी है यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। सो मेरी जो क्लास का नेम है, कंस्ट्रक्टर का नेम है वो पैरम कंस्ट्रक्टर है। सो मैंने एक इसके अंदर वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने
यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ कर ले, एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। तो वेन एवर आई विल पास इस कंस्ट्रक्टर, तो मुझे एक इनपुट यहाँ पे पास कराना पड़ेगा विच इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मेरा वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने इसके अंदर जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू, तो वो लैंग की वैल्यू है जो मेरी लैंग्वेज के अंदर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे सिंपल से ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या प्रिंट करा दिया है, यहाँ पे मैंने इसमें प्रिंट कराया है दिस इज प्रोग्रामिंग या दिस इज लैंग्वेज लिख देते हैं, प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे आपका वेरिएबल का नेम आ जाएगा, कौन का प्लस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराने वाले, लैंग्वेज प्रिंट कराने वाले हैं। सो यहाँ पे ये मेरा हो गया, इसको आप डबल कोट्स में लिख लीजिए, इसलिए ये रहा है क्योंकि डबल कोट्स में अपने टाइप नहीं किया है। सो ये मेरा यहाँ पे लैंग्वेजेस है, मैंने वहाँ पे लैंग्वेज लिखा है इसलिए वो एरर दिखा रहा था। ओके, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे यहाँ पे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। और वेन एवर यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, आपको यहाँ पे एक पैरामीटर पास कराना है। ये आपका कंस्ट्रक्टर होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे पास करा दिया हिंदी, सी जावा लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे सी हो गया है। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करके आपको पर्टिकुलर 2-3 लैंग्वेज आप वहाँ पे लिख सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी यहाँ पे करेंगे आप। यहाँ पे जावा लिख लीजिए और यहाँ पे आपका ये पाइथन आ जाएगा। ओके, अभी मैंने कुछ नहीं किया, जैसे इसको रन कराने वाले हैं हम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मेरा एक का obj1 हो गया और एक का नाम मेरा obj2 होगा और एक का नाम मेरा obj है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, रन एज जावा एप्लीकेशन कीजिए, तो यहाँ पे आप जाकर देखेंगे, आपको देखो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग ऑफ योर क्लास इट विल इन्वोक योर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आपने पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पहली बार उसने सी को प्रिंट कर दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने जावा को प्रिंट कर दिया, तीसरा ऑब्जेक्ट किया तो उसने पाइथन को प्रिंट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विच इज हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, और डिफरेंट पैरामीटर्स आप बोल सकते हैं, which is considered the parameter as well, it is known as the parameterized constructor. So this is the way you can display your parameterized constructor. Okay, so basically why we use the parameterized constructor, this is the example in front of you. You can see basically the parameterized constructor is used to provide different value to the distinct object, and which object like you have created based on your input. Okay, so like you have created here a constructor which is having the parameter as string, then you have to pass the value as a string only. Okay, so this is the example of parameterized constructor. So we have covered two things in this session. One is default constructor, second is the parameterized constructor. Default constructor without argument, which is having no argument, that is called the default constructor, and which is having the argument or parameter, which is known as the parameterized constructor. So basically the use of constructor is used to in default constructor is used to initialize the instance variable value. If you are not assigning any instance variable value, it will assign by default based on your data type. What is the constructor? Construct is a special type of method. ये आपको मैंने भी डेफिनेशन में बता दिया है। स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज यूज्ड टू इन्वोक योर ऑब्जेक्ट, जो भी आपने वहाँ पे किया है बाय डिफॉल्ट इट विल इन्वोक योर parameters or class or method based on that. So you can write a definition like that. It is a special type of method which is used to initialize the object based on your input data type which you have given, like string, integer, decimal, float, double. तो ये आपका पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड यू कैन राइट इन अ कमेंट। यहाँ पे एक चीज़ होती है बेसिकली, जैसे ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, या फिर ये ओवरलोडिंग क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, हमने ओप्स कॉन्सेप्ट में कवर किया है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो बेसिकली इन कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक ए मेथड एज आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड टू यू। सो बट देयर विल बी नो रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो जावा ओवरलोडिंग पॉसिबल है मतलब कंस्ट्रक्टर केस में, इट कैन। तो अगर मैं ये को रिटर्न नहीं करते तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि यू विल बी हैविंग द सेम नेम मेथड, मल्टीपल मेथड बाय सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स।
तो दैट इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। मतलब मेरे पास में एक मेथड है जिसका नाम टेस्ट है और दूसरा मेथड है जिसका नाम टेस्ट है, लेकिन मेरा जो पैरामीटर्स है जो आपने उसमें पास कराए हैं वो डिफरेंट है, जिसमें एक मेथड में मैं 2 का सम करा रही हूँ, एक में मैं 3 का सम करा रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द ओवरलोडिंग। तो क्या इट इज पॉसिबल बाय द इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर? यस इट इज पॉसिबल। अब वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाले हैं। ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे एक छोटा सा नया एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में मैं कवर कर लेती हूँ। इसी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने, तो आई विल क्लियर। सो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे एक कोई भी आई मीन जो आपको अच्छा लगे वो वेरिएबल का नेम दे दीजिए। हमने यहाँ पे इंटीजर आईडी, अभी दूसरे वाले प्रोग्राम में हमने लिखा है स्ट्रिंग डाटा टाइप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम लिखा है और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले हैं। तो ये आपकी क्लास का नेम है, तो यहाँ पे इस क्लास के नेम में मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करा है और इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वेरिएबल पास करा है इंटीजर आई करके पास करा दिया है और स्ट्रिंग करके नेम। मैंने एक लास्ट वाले वीडियो में ना आपको ये भी प्रिंट कराया, बताया था दिस कीवर्ड, हम इसका आगे बताने वाले हैं यूज़। ठीक है, वो कैसे यूज़ करते हैं, बट अभी तो आप इस तरीके से ही ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट एग्जांपल में हम दिस कीवर्ड का भी यूज़ करने वाले हैं। नोट आई यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू है आपकी वो आई एन में असाइन होगी, वो आई से आपकी नेम में चले जाएगी। तो यहाँ पे आपने लिखा है, यहाँ पे आई डी इज इक्वल्स टू आपका आई आ गया है और नेम इज इक्वल्स टू यहाँ पे एन, नेम इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे एन आ गया है और ये कर्ली ब्रेसेस मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया है। अब मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना है, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू पास करा देनी है। मैंने इंटीजर ये आपका आई प्रिंट करा दिया है और आपका एक और वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग एन, और इसके अलावा हम एक वेरिएबल और लेते हैं। यहाँ पे इंटीजर स्पेस करके मैंने ए वेरिएबल पास करा दिया है। ये मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे पास करा दी है। ये जो मैंने ए पास कराया है इसके लिए एक कोई और वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, इंटीजर एड्रेस ले लेते हैं। ठीक है, तो एड्रेस में हम ना स्ट्रिंग में ले लेते हैं इसको, और एक में 2 पैरामीटर हो जाएंगे, एक में 3 पैरामीटर हो जाएंगे। स्ट्रिंग में एड्रेस ले लेते हैं, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे आपका एड्रेस का ये स्ट्रिंग डेटा टाइप आ जाएगा और यहाँ पे इसका ए आ जाएगा एड्रेस का। सेम आपको यहाँ पे आई डी इक्वल्स टू क्या लिखना है, आई लिखना है, और नेम का आपका इक्वल्स टू एन आ जाएगा और एड्रेस का इज इक्वल्स टू आपका ए आ जाएगा। ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, ये जो हम यहाँ पे मेन मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें डायरेक्टली आप दोनों को एक साथ कॉल करा सकते हैं या फिर मेथड के थ्रू भी कॉल करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मेथड ले लेती हूँ जिसका नाम मेरा डिस्प्ले है। ये चॉइस है आपकी, बस दिस इज द वे। अगर आप प्रिंट कराएंगे ना चीज़ तो वो इसके अंदर प्रिंट करेंगे, वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट की लाइन आपको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सिंपल सा प्रिंट का नाम लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा आई डी इज इक्वल्स टू प्रिंट कराया, प्लस मेरा आई डी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ पे, और उसके बाद मैंने प्लस का साइन दिया, डबल कोट्स लिखा, यहाँ पे मैंने नेम इज इक्वल्स टू लिखा और फिर से मैंने प्लस का, ये कॉन्केटेनेशन के लिए यूज है तो नेम वाले लेटर में आ जाएगा। यहाँ पे कॉमा यूज नहीं होता है, सी लैंग्वेज में कॉमा यूज होता था। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया, तो एड्रेस मेरा यहाँ पे बंद कर दीजिए इसको, प्लस में मेरा यहाँ पे ADRESS यहाँ पे ये एड्रेस आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे एक मेथड ले लिया है वही डिस्प्ले। मुझे यहाँ पे बार बार वो प्रिंट वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जो क्लास का नेम है हम उसे हमने कॉपी कर लेते हैं, वो क्लास का नेम मैंने कॉपी कर रखा है। तो यहाँ पे मैं obj1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, यहाँ पे न्यू, ये मेरा क्लास है। इस क्लास में मैंने 2 चीज़ें पास कराई, एक ID01 के नाम से और मैंने इंटेली इसका नाम पास करा दिया है यहाँ पे ये, और यहाँ पे इसको सेमीकोलन से मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरा जो इंटेली है ना वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो स्ट्रिंग में क्या करता है, डबल कोट्स का यूज़ करता है, इसलिए मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम दिया obj2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा न्यू आ गया है और ये इसका नाम आपने दिया है, मैंने आपकी बार 101 लिखा है और इसका नाम मैंने यहाँ पे एक्सचेंज लिख दिया है और कॉमा लगा के मैंने इसका जो सिटी है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है पुणे, और मैंने इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अभी मैंने क्या करा, इन दोनों के थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने अपने मेथड को कॉल करा लिया है, जो मेरा मेथड है
अब उस मेथड में आप ध्यान से देखना, दो चीज़ें हैं। मेरा पहले एक जो मैंने यहाँ पे कॉल कराया हुआ है, ये फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, उसमें मैंने आईडी, नेम, एड्रेस तीनों प्रिंट कराए हैं, लेकिन मैंने इसमें पास किया कराया आईडी और नेम पास कराया है। और तीसरे में मैंने दोनों चीज़ पास कराई हुई है, आईडी, नेम और यहाँ पे एड्रेस भी पास कराया हुआ है। तो इस केस में मेरा आउटपुट कैसा आना चाहिए? तो बेसिकली जब आप ये रन कराएंगे, इस केस में आईडी की वैल्यू 101 हो जाएगी और नेम की वैल्यू आपकी इंटेली हो जाएगी, लेकिन एड्रेस की वैल्यू यहाँ पर नल रहेगी क्योंकि आपने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कराया। और लेकिन कंस्ट्रक्टर के थ्रू बाय डिफॉल्ट आपका इनिशियलाइज हो जाती है अगर आपने इनिशियलाइज नहीं की है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अभी हम इसको रन कराते हैं तो आपको इसका आउटपुट पता चलेगा। राइट क्लिक कीजिए, रन एज जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा मेरा। ओके, सेव हो गया आपका। आईडी 101, नेम इंटेली, एड्रेस मेरा नल है क्योंकि मैंने वहाँ पे एड्रेस नहीं डिफाइन किया और बाय डिफॉल्ट आपको ये जो किसने किया है, कंस्ट्रक्टर ने डिफाइन किया है, इनिशियलाइज किया है, सॉरी। यहाँ पे पुणे आपका आ गया। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एड्रेस नाम का, इसलिए यहाँ पे वो नल डिफाइन हुआ है। और आप दूसरे केस में आपने क्या किया है, ऑलरेडी पुणे सिटी रखा है, तो इस वजह से उसने क्या किया, उसको वो रेड कर दिया। तो दिस इज द वे यू कैन use the constructor, different type of parameterized constructor। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है क्या जावा में? ये क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है। तो देर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा बेसिकली, बट यू कैन कॉपी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम सी प्लस प्लस में और सी में करते हैं। आपने वेरिएबल को एक पैरामीटर पास कराया, फिर उसको आप दूसरी जगह पास करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कैसे करते हैं, इसी एग्जाम्पल में मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मेरा ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना, तो मैंने क्या करा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे ना इस वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करा दिया, मेरा obj1। ये मेरा यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, यहाँ पे obj न्यू न्यू जो भी नाम मैंने यहाँ पे दिया है वो यहाँ पे दे दिया और इसको मैंने obj को पास कर दिया। लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है अगर आप देखो, बिकॉज ये डिफाइन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है ना, वो मुझे यहाँ पे बोला डिफाइन, क्योंकि आपने पास कराया तो आपको डिफाइन भी तो कराना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए आप वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करा रहे हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट पास कराएंगे तो आपके जो क्लास का नेम है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे एस रख दिया। तो जब भी आप इन चीज़ों को कॉल कराएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एस डॉट आई करके बन जाएगा, यहाँ पे एस डॉट एन करके। इस तरीके से आप ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसको रिमूव कर दीजिए। तो ये दिस इज़ द वे ऑफ इनिशियलाइजेशन, आप इस तरीके से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अभी भी मुझे ये एरर दे रहा है क्योंकि मेरा वैल्यू क्या है वहाँ पे, आईडी, लेकिन आप क्या यूज़ कर रहे हैं, एन। तो यहाँ पे ये नेम आ जाएगा। तो आप इस तरह से, दिस इज़ द वे यू कैन डू द कॉपी। आप इसको रन कराएंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हैं इनके बीच में ना, पता नहीं चलता ऐसे। तो यहाँ पे कॉपी करने का कोई बाय डिफॉल्ट तरीका तो नहीं होता, लेकिन आप इस तरीके से करा सकते हो। एड्रेस मैंने पास नहीं कराया इसलिए वो मुझे नल नल दिखा रहा है। तो देखो इसमें यहाँ पे इंटरली पास कराया है, तो इस पहले वाले जो कंस्ट्रक्टर है वो दूसरे में यहाँ पे मैंने कॉपी करा लिया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। तो दिस इज द वे यू कैन डू। वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। आई होप ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मैंने उसको 2 बार रिपीट करा है कि क्या आपका कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं? नहीं, कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, बट ये इन जो आपका कंस्ट्रक्टर जब आप क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट इट विल यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। सो बेसिकली यू कैन नॉट यूज रिटर्न टाइप, बट इट रिटर्न्स अ वैल्यू किसकी, इंस्टेंस वेरिएबल की। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपकी इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई रिटर्न नहीं होता है, इंटीजर वॉइड ऐसा कोई रिटर्न टाइप आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि डज कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू, तो इसका आंसर ये रहेगा येस, इट इज द रिटर्न बट करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू जो कि आप यूज करते हैं वही ये रिटर्न करता है। तो ये आपसे पूछा जाता है। दूसरे क्वेश्चन आप यहाँ पे इंपोर्टेंट पे लगा सकते हैं, कैन कंस्ट्रक्टर परफॉर्म द टास्क इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइजेशन? यस, like object creation you are doing, you are calling your method, you are initializing the value,
So all these things constructor can do. So basically, by default, if you are not creating your considering your class, there can be consider, yes, internally. If you are not creating any constructor in your class, by default it created डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर का टॉपिक खत्म होता है. आई होप आपको ये समझ में आया. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट. आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेश्चंस, और आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर all the question answers. So if you are having any doubt, please feel free to comment in my this video. And thank you so much for watching. If you are new, kindly subscribe my channel.